बोलो हाय मुझे. Why are you actually? अगर आप sad हो, because this post is specifically for those people who are going through a hard time right now, and you are just starting college and you are scared कि क्या होगा and all that thing. Like, I know we have this kind of people who would be like, oh, my life has been great in school life, but there had been people in life, like, if I can be there, there can be someone relatable as there who also had a bad past in school life. And right now, you are going to a new place in college for 4 years or 3 years, and you are automatically very scared. You don't know what to do. You feel jittery. You feel like kya karu and all that. And at this moment you just need someone to just talk to you or to just say you something, because I'm not taking this video as a way of just telling this to you, but to myself, to myself, because see, right now I'm in such a phase. I think I did my graduation and the diploma course today, which I'm doing. I am in a like college. Obviously, flop हो भी सकता है. एक चीज़ बता देती हूँ. कॉलेज में जो पढ़ रहे हो वो चीज़ आप नौकरी नहीं भी कर सकते हो. But the point is simple. You cannot destroy your mental health because of any reason out there. You cannot say to yourself that, I want to take my life, I don't deserve this life, because this life deserves you. ये लाइफ तुम्हें डिजर्व करती है. तो अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप खुद कॉन्फिस्केटेड हो, खुद पजल्ड अप हो, खुद को लग रहा है कि क्या करूँ, बिकॉज ऑब्वियसली द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड यूट्यूब, एट दैट टाइम ऑल्सो आई हैड मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज. So in those days, I used to make every video and I used to cry. I used to feel so poor. I used to feel so unworthy. And I think this is the time in college where you are built in a new way. You have to accept yourself, you have to transform yourself, you have to give something to yourself. And that is why I have actually, uh, like, wait, yeah, बेसिकली मेरे मोबाइल पे कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो चुका है. बट बट स्टिल ये गड़बड़ होने के बावजूद भी मैंने मोबाइल पे बेसिकली 10 मेरे मोबाइल मैं मोबाइल एक्चुअली यू नो व्हाट, just because I want to make content, I have borrowed my phone from my father's one. लाइक बाबा का मोबाइल लिया है और उससे मैं वीडियो थोड़े अच्छे आते हैं इसलिए बनाती हूँ. उसके साथ मेरा खुद का मोबाइल है. तो इस मोबाइल में मैंने 10 पॉइंटर्स लिखा है और आपको वो 10 पॉइंटर्स मैं शेयर करूँगी. वो आप कर सकते हो आपके ट्रॉमा को लेट गो करने में. लाइक अगर आप अपना ट्रॉमा से बाहर आना चाहते हो, देन यू शुड हियर दिस टॉप 10 पॉइंटर्स ऑफ माई सेल्फ. एंड मैं ये ऑब्वियसली आपको बताने के लिए नहीं बता रही हूँ. आई नो कुछ लोग बताते कि आई विल हेल्प यू. आई एम नॉट अ सेल्फ हेल्प गुरु, बट दिस इज़ वॉट आई हैव फेस्ड इन माई लाइफ. और जब मैं कॉलेज में थी, सच बताऊँ, 3 साल वॉज नॉट इनफ फॉर मी टू understand it, because I also fell in a horrible phase in college only, but I struggled to get out of it and I am in a better place. Not that I am the best place, but who knows? Who knows if a video goes viral, or if you guys like me, or if something good happens and I go something. तो अभी उसके अलावा भी ज़िंदगी उतनी भी डायरेक्शनलेस या एमलेस या डिप्रेसिव नहीं चल रही है. ये एक लाइफ अपडेट अच्छी है. तो उसके लिए मैं ये 10 पॉइंटर्स दूंगी जो आप एज अ कॉलेज स्टूडेंट यूज़ कर सकते हो आपकी रियल लाइफ ज़िंदगी में, आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए. तो मेरा पहला पॉइंटर्स जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि गिविंग योर सेल्फ अ चांस. गिविंग योर सेल्फ अ चांस. सी, अगर आप बहुत ज़्यादा बैडली बुलेड हुए हो या बैडली कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, you can be abused, you can be going through something wrong sexually, you have been traumatized beyond repair out there, then आपको मैं बताना चाहूँगी कि खुद को ना चांस देना पड़ता है. और खुद को चांस, आप पूछोगे कि खुद को चांस किसके लिए दूँ? किसी के लिए नहीं, खुद के लिए देना पड़ता है. इट्स जस्ट सिंपल. कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो. मुझे भी आप सिर्फ सुन रहे हो, मैं आपकी वेलरेबिलिटीज़ या मैं आपका पेन नहीं समझ पाऊँगी कि खुद को बेसिकली खुद के लिए चांस देना पड़ता है.
खुद को बताना पड़ता है कि मैं मरना जितना भी चाहूँ मैं इससे लड़ूंगा या लड़ूंगी, एंड आई विल बी गेटिंग आउट थ्रू इट। ये बोलना बहुत मेहनत लगता है, मैंने बहुत ज़्यादा साल लगा दिया ये करने में। आई नो यू आर स्ट्रगलिंग आउट देयर एंड यू विल फील लाइक शिट। मैं कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो पा रहा है, बट नहीं हो पा रहा है इसलिए तो आप कोशिश कर रहे हो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो खुद को चांस आप दिया सकते हो, लाइक यू कैन गिव योर सेल्फ अ चांस एंड यू हैव टू गिव योर सेल्फ अ चांस। गिव योर सेल्फ अ चांस एंड ऑल्सो bloom from it. Just learn from your experience and also just get out, do something, express yourself. And one of the easiest thing that if you can do, one of the thing like is that, like, I will talk about this in detail, but yeah. हाँ, ये है तो गिविंग योर सेल्फ अ चांस। और यू नो वट, खुद को चांस देना बहुत मुश्किल भी हो सकता है, बट स्टिल यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ चांस। और ये किसी के लिए नहीं, ये खुद के लिए बताना पड़ेगा, खुद को आईने में जाकर देना पड़ेगा कि लोगों ने मेरे साथ शायद बुरा किया होगा, आई हैव बीन थ्रू टॉक्सिक शिट, आई हैव बीन थ्रू अ मेस, बट स्टिल आई एम टुडे आउट देयर गिविंग माई सेल्फ अ चांस टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, and I will do it. I will make it happen for me. That is my goal, and that is gonna be a good ride out there. अभी 4 साल 3 साल है, कुछ ना कुछ अच्छा होगा. I will give myself a chance. तो ये है। और नंबर 2 इज लाइक एक्सपीरियंसेस, तजुर्बा। मतलब एक जावेद अख्तर ने कहा है कि कुछ ना हुआ तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। तो जो भी तजुर्बा हमें सिखाती है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स एक्सपीरियंसेस करो। और 4 साल 3 साल अगर वेला ही बैठे रहे अपने दर्द में, अगर हो भी ना कुछ वो ज़िंदगी में चल रहा है, तो उस चलने से कुछ तजुर्बा हो जाएगा, चलने से मिल जाएगा, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, नहीं तो वो कर सकते हैं। ज़िंदगी को जीने का कोई मौका ज़िंदगी तुम्हें देगी, तो उसको लेना सीखो, उसको समझना सीखो। और हाँ, वक्त तो लगेगा, लाइक भूलने में वक्त लगेगा कि बहुत कुछ गलत हो गया, तो इसलिए भूलने में तो वक्त लगेगा, बट तुम्हें भूलने के लिए बहुत ज़्यादा मौका भी मिलेगा। और कभी कभार कॉलेज में फेस्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं, उसमें अगर आप खुद को मगन कर लेते हो ना, तो वो दर्द जो आप ज़िंदगी भर कॉलेज में लाते हो पहले कि यू नो आई हैव बीन थ्रू सो शिट, वो आप भूल ही जाते हो। वो भूल नहीं जाते तो वो कम हो जाता है। तो ये बात मेरी एक टीचर या प्रोफेसर ने बोला था कॉलेज के टाइम, जब मैंने बोला था दैट आई गो थ्रू ट्रॉमा एंड आई हैव सेड हर दैट मुझे बहुत मुश्किल होता है ट्रॉमा से बाहर निकलना। तो वो उन्होंने ये कहा था कि टू मेक न्यू एक्सपीरियंसेस, it is the best thing, that you have to make new experiences to get out of trauma. So you have to experience experiences to get out of trauma. और हाँ, ये 3 पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर रियली गोइंग थ्रू डीप शिट ऑफ ट्रॉमा। बिकॉज ये मेरे ज़िंदगी में ये जब मेरा हुआ ना, देन आई काइंड ऑफ like I kind of made a mess of my own life, that stop staying in a loop, stop staying stuck in a loop. I know आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बट आपके साथ ही नहीं हुआ है, शायद किसी और के साथ भी डिफरेंट तरीके से हुआ है। तो अगर आपको ना किसी को मतलब आपने like if you are hurt because of something else, if you have been shivering because of something wrong, if you are anxious because you have not been treated well in school, it is okay, it is not a bad thing. But staying stuck in here and feeling like, oh, it is gonna happen all my life, it is something dangerous. You need to give yourself a chance, you need to give that opportunity to yourself, where you be like, I might be imperfect, I might be annoyed, I might be fucked up, बट स्टिल आई विल ट्राई फॉर माई सेल्फ। मैं खुद के लिए मौका ढूंढा करूँगी, खुद को जीने के लिए खुद कुछ अच्छा करा करूँगी, ये है। और उसके बाद मीट हेल्दी एंड सपोर्टिव पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने यहाँ पे दोस्त के बारे में नहीं लिखा, बिकॉज क्या हो जाता है अगर आप मतलब लंबे दौर में जाओ, इफ़ यू सी इन द लॉन्ग टर्म,
देन यू विल नो दैट ये 3 साल में दो दोस्त बन रहे हैं ना, वो सब चले ही जाते हैं, उसके बाद और दोस्त बनते हैं, चले जाते हैं। तो ऐसे दोस्त बना के एक ग्रुप में रहने की कोई ज़रूरत उतना होता नहीं है। Just meet people who do good to you, who treat you nicely. Because in this way, you will be able to let go of your toxic past. You will be able to let go of toxic people who treated you not nice earlier. You will be able to make new experiences for yourself which are healthy. So do good things to yourself. ऐसे करके you can create a visible safety net of group of people in your mind who are nice to you. तो ऐसे चीज़ें कर करके ना, जो तुम्हारे साथ पास्ट में बुरा लोग कर चुके हैं, उसको भूलने में थोड़ा मेहनत लगेगा। लाइक उसको तुम भूल सकोगी एट द एंड ऑफ द डे। लाइक पास्ट के जो लोग बुरे किया है, ये हम जो है लूप में रहते हैं ना, इन्होंने बुरा किया है, मैं इनसे बाहर नहीं आ सकती, इन्होंने मुझे डरा के रख दिया है। स्पेशली इफ यू आर अब्यूज्ड, तो यू फील लाइक द नॉन स्टॉप थिंग दैट दिस पर्सन विल अब्यूज मी ऑल माई लाइफ। बट नो, दैट पर्सन हैड टू गो। एंड इफ ही अगर ऐसा हुआ है कि वो लड़का या लड़की जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया वो चला गया, फिर भी तुम्हें डरा रहा है, तो गो इन कॉलेज एंड जस्ट रियलाइज दैट देयर आर अदर पीपल। अगर किसी प्रोफेसर ने तुम्हें बुरा मतलब कर रहे हैं, तो कोई अच्छा दोस्त होगा, या दोस्त नहीं, दोस्त मतलब जस्ट तुम्हें समझने वाला चाहिए, सपोर्टिव एंड न्यू पीपल। नए लोग का मज़ा सिर्फ यही होता है कि वो अगर समझे ना, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है और आसान हो जाती है। तो समझने वाला चाहिए, एक एक समझने वाला रूट भेजो, समझने वाला लोग चाहिए। तो यही लिखा ना, मीट हेल्दी पीपल। हेल्दी मतलब जो आपको समझे और सपोर्टिव पीपल। अगर आपको सपोर्ट और हेल्दी करते ना, जैसे मेरे टाइम पे एक टीचर बहुत अच्छी थी और 2-3 दोस्त अच्छे थे, तो मैं उनके पास ही जाती थी, क्योंकि अगर पॉजिटिव कनेक्ट होता है ना, अगर हेल्दी वाइब्स आते हैं ना, आप बहुत कुछ हेल्दी कर सकते हो इन रिटर्न, जो आप नेगेटिव लोगों के साथ नहीं करोगे। तो अगर आप पहले से ही नेगेटिव लोगों को फेस कर चुके हो, क्यों उनके साथ अपना टाइम वेस्ट फिर से कराना चाहोगे? दैट इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। उसके बाद लर्न फ्रॉम कॉलेज एक्टिविटीज़। हाँ, तो ये है कि एक्टिविटीज़ बहुत कुछ होने वाला है कॉलेज में, क्विज, डिबेट। आई थिंक अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा ड्रामा एंड टॉर्चर था, बट अब लॉकडाउन नहीं है, तो कुछ ना कुछ अच्छा एक्टिविटीज़ तो होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। अगर आप इतनी भी गो गेटर पार्टिसिपेंट नहीं हो कि मुझे पार्टिसिपेट करना अच्छा नहीं लगता, तो जस्ट देखो, ऑब्जर्व करो, उससे कुछ अच्छा पाने की कोशिश करो। आप पोइट्री लिखते हो तो लिखो, उसको इंटरनेट पे दो, जो मैं करती थी और अभी भी कर रही हूँ। तो वो है लर्न फ्रॉम कॉलेज एक्टिविटीज़ एंड यूटिलाइज इट इन योर डे टू डे लाइफ। जो कॉलेज से सीख रहे हो वो आहिस्ते आहिस्ते आपकी रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। मेक स्पेस फॉर योर इमोशंस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक स्पेस फॉर योर इमोशंस। अगर पहले क्या होता था, स्कूल में हमें एक तरीके से रहने को बोला जाता था कि ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे गुस्सा होना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। जो डियर कायरा वो जो डियर ज़िंदगी में वो बोला था शाहरुख खान ने कि ऐसे चलना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए। तो हमें वो फीलिंग्स का वो कितना वैल्यू नहीं पता था। बट कॉलेज के टाइम अगर आप लेट गो करना चाहते हो ट्रॉमा को, तो आपको अपने इमोशंस पे वैल्यू करना चाहिए। लाइक इवन इफ आई एम फीलिंग एंग्री, आई वुड validate it and feel like for now I am angry for certain reasons that are there. What are the reasons? I will find it out. Same with sorrow. I am feeling sorrow. What are the reasons for which I am feeling sorrow? I will validate it and feel it. I will feel it. I will feel the pain. I will feel the joy. I will feel the tears. I will feel everything I do, and I will make space for every emotion and let it go. I will not keep one emotion inside of me and feel like it is what I'm meant for ऑल माई लाइफ। जो मैं बहुत करती थी कि मुझे लगता था मैं डिप्रेशन में ज़िंदगी भर रहूँगी, सैडनेस विल बी अ पार्ट ऑफ मी, और सैडनेस इज़ माई लाइफ, सो इट इज़ नॉट राइट। ट्रॉमा में ऐसा लगता है कि सैडनेस इज़ योर लाइफ, बट ट्रॉमा में लगता है, इसीलिए तो आपको बाहर आना पड़ेगा, इसीलिए एक्सपीरियंसेस करो, और एक्सपीरियंस करने से आस्ते आस्ते जब आप आहिस्ते से बाहर आओगे ना, तो आप पता चलेगा कि आपको अपने इमोशंस को अगर आप अच्छे से स्पीच करते हो ना, देखते हो कि बहुत सारे इमोशंस हैं ज़िंदगी को जीने के लिए, ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए। जब बहुत कुछ है, तब एक चीज़ में हम अटके नहीं रहेंगे, ट्रॉमा से बाहर आना ही होगा। और ट्रॉमा से बाहर आप इसी वजह से आ सकते हो, अगर
आप खुद के लिए कोशिश करो। तो अगर इसके बाद, इस वीडियो के बाद अगर कुछ आपसे बुरा हो रहा है या कुछ भी नहीं है, तो कमेंट सेक्शन पे, या कमेंट सेक्शन में अगर नहीं बताओ तो आप अगर मेरी बातों को समझ पा रहे हो, डू समथिंग दैट इज देयर फॉर योर सेल्फ, डू समथिंग इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ। खुद को मौका दो, क्योंकि खुद को अगर मौका दोगे ना तो ज़िंदगी आपको मौका देती रहेगी खुद को लिए खुश रहने की। तो वो भी है। एंड देन देन द अदर पॉइंट, हाँ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड आई वुड ओनली टेल दैट it has been difficult for me to do it. I think I had started it through YouTube only, that when I used to speak I used to feel like I will tell what I want to tell, but ये बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर आप कुछ मैनिपुलेटेड चीज़ें से जाते हो, अगर आप पीपल प्लीजिंग एरा में जाते हो तो आपको खुद का जो वॉइस होता है वो खुद दब जाता है। ऐसा लगता है मेरा कुछ है ही नहीं। I will always please the other person, I will always tell what the other person want to hear, and you be in a very confused state and you be in an insecure state. So that is a position where you have to make yourself heard. अगर आप इतने मैनिपुलेटेड हुए हो, या अगर आप किसी ने यूज किया है तो आपको पता है कि इससे मुझे बाहर निकलना है। अगर आप किसी चीज़ में कैद हो तो उससे छुटकारा मिलना ही है कभी ना कभी। तो ये कॉलेज का टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू डू इट। डू इट फॉर योर सेल्फ। बिकॉज क्या होता है, 4 साल या 5 साल बाद आप जो भी चीज़ों में रह जाओगे ना, दुविधा आएंगी, दुविधा नहीं भी आएंगी, बट चीज़ें अगर अच्छी होनी है तो आपको हमेशा खुद के लिए खुद मौका खुद के लिए देना पड़ेगा। दूसरे आएंगे या जाएंगे, बट खुद के लिए अगर आप मौका देते हुए आप खुद को नहीं भूल पा रहे हो तो आप ज़िंदगी को जीतना आहिस्ते आहिस्ते जान रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ ये सारी बातें आपको बोलने के लिए, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ खुद के लिए आज। जैसे मेरी भी एक कोशिश है मैं खुद का कुछ करूँ। एंड ये एक ऐसा नहीं है ये अभी से है, ये ट्राई करते करते फेल्ड अटेम्प्ट्स, लूज, हार्ट ब्रेक्स, रिजेक्शंस, ट्रॉमा, या जो भी, लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड थिंग्स आई रियलाइज दिस वे, नो, आई कैन नॉट डिस्ट्रॉय माई लाइफ, आई हैव टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल आउट ऑफ इट, out of what I have, so you can make it also. और नेक्स्ट पॉइंट जो है, build positive vibes। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखो, नेगेटिव वाइब्स अगर आप खुद के लिए अगर खुद के अंदर में रखोगे ना तो ऑब्वियसली आप प्रोग्रेस नहीं करने वाले हो। तो ऑब्वियसली आपको, अगर आप खुद छोटा फील करते हो तो खुद को और छोटा फील कराओगे। तो इससे ज़्यादा है कि आप पॉजिटिव वाइब खुद के अंदर जल्दी से कर लो कि अरे यार हम करेंगे, हम लूज़र फील करते पर ज़िंदगी भर नहीं, कभी कभार हीरो बनेंगे। और खुद जब हीरो बनेंगे ना तब खुद का पोस्टर खुद के कमरे में लगा के खुद को हीरो महसूस करवाएंगे। build a positive charm, manifest something that is positive for you, that is your chance, give yourself a chance, that I said in the beginning। एक ही चीज़ यहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं ना वो मैं इधर उधर से बोल रही हूँ, तो वो चांसेस देते रहो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर इम्पॉर्टेंट, I am important, you are important, we are important, या। और लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, और ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टॉक एंड मेक योर सेल्फ हेयर्ड। देखिए, मैं ये अपना पॉइंट मैं अपनी तजुर्बे से बता रही हूँ कि मैं भी ऐसी नहीं थी कि चीज़ें सही होने वाली हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होता है, यू फील गिल्टी, यू फील लाइक you are making a crime and making yourself feel heard. Your issues are so bigger that nobody get to listen to you that way. Nobody will understand you. Everyone you will use your vulnerabilities. Everyone you will judge you. Sometimes your parents does that. They be like हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं हमने किया था। But अगर आप कोई भी चीज़ बुरे जा रहे हो तो you have to talk it to someone and make yourself heard and felt out there. लाइक एक मूवी है सुशांत सिंह राजपूत की सेकंड लास्ट फिल्म शायद, वो मूवी का नाम अगर आपको याद है, बिकॉज वहाँ पे वो 18 साल का लड़का वो सुसाइड करने पे था, और जिधर सुशांत सिंह ने बोला था एज एन द कैरेक्टर कि ज़िंदगी को जीतना है ज़िंदगी को जीतना है। इसमें हर चीज़ तो लगा रहता है बट ज़िंदगी को जीतना है। तो वही है, आप जहाँ भी हो, आप जितना भी ट्रॉमेटिक हो, जितना भी आपको बुरा फील हो रहा है, ज़िंदगी को जीतना है।
ज़िंदगी को मौका देना है. If you're not giving yourself the chance to live life better just because someone has given you a horrible thing out there, you are only doing wrong to yourself. और खुद की गलती खुद की नहीं, मतलब खुद को गलत खुद के लिए मत बनाओ. दूसरों को बनाना इज़ ओके. कभी कभार दूसरे बन भी जाते. खुद बोल सकते हो कि ओ ही डिड दिस रॉन्ग, ओ ही दैट रॉन्ग. But at the end of the day, you have to choose yourself and do something right to yourself. That is important in the long run. एंड अगर इसके लिए थेरेपी लेना है तो ले सकते हो. मैंने भी लिया है, थेरेपी लिया है दोस्तों के साथ, दोस्त नहीं पर कुछ लोगों के साथ बातचीत किया है. मैंने अपना बात पॉइंट रखा है. और यही एक चीज़ होता है कि टॉक योर सेल्फ आउट और बी हर्ड. मीन जिसे बात कर रहे हो, एक अच्छा चीज़ ये होता है कि दूसरा आपको रिस्पेक्ट भी करे, आपकी बातों का कुछ मजाक ना उड़ा के आपको रिस्पेक्ट भी करे. और अगर ये सब कुछ मुमकिन नहीं है तो ऑब्वियसली मेरी तरह से बात करना यूट्यूब पे चालू कर दो. या ऑब्वियसली यूट्यूब नहीं तो कोई कितना स्कोप है, राइटिंग पोएम्स, गोइंग ऑन ओपन माइक्स, डूइंग समथिंग और द अदर. बट खुद के लिए कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश अगर खुद के लिए नहीं करोगे तो आप बाहर निकल नहीं पाओगे कोई भी दर्द से. और लास्ट पॉइंट जो है, लिव योर प्रेजेंट. लिव योर प्रेजेंट. yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. That is why it is called a present. तो ऑब्वियसली जो लोग ट्रॉमा में होते हैं वो लोग आज को नहीं जी पाते हैं. आज को क्या जीना होता है ना, मुझे समझ आता है. बिकॉज हम बहुत ज़्यादा दुविधा में, हम ज़्यादा एक लूप में रहते हैं कि सब कुछ गलत होगा, एक ही चीज़ जो बार बार हो चुका है शायद आगे वही होगा. तो उससे बाहर आने के लिए यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अभी का देख लेंगे. अगर अभी का देख लेते हो ना, ज़िंदगी का देख लोगे. तो वही है. एंड यही बताना है आप लोगों को. एंड दिस इज़ माई लेट आउट. I hope I see you in the next video and you see me in the next video. आपको कुछ बताना है, कुछ शेयर करना है and all that, you can be there. The comment section is on. You can be there with me. And अभी के लिए bye. Bye bye. अभी next video में फिर से मिलेंगे. हाँ, bye.